قرآن نے یہ بھی واضح کر دیا کہ آپ کسی پر زبردستی نہیں کر سکتے، تلوار کی زور سے کسی کو اسلام میں داخل نہیں کر سکتے۔ اے اللہ ہم نے ان غیر مسلموں سے سلوک کیسا کرنا ہے یہ بھی قرآن نے بیان کر دیا۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم، 28واں پارہ۔ جو بھی غیر مسلم ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، بدھسٹ ہو، اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہیں ان سے اچھے سلوک سے منع نہیں کر رہا، بلکہ اچھے سلوک کا اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی یہودی بیمار ہوتا اس کی بھی عیادت کے لیے اسی طرح جایا کرتے تھے جیسے کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتے۔ ہمارے نبی کی زوجہ ایک یہودی خاندان سے تھی، وہ اپنے یہودی خاندان کو ہدیے دیا کرتی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے انہیں منع نہیں کیا۔ ہماری دشمنی یہودیوں سے نہیں ہے، عیسائیوں سے نہیں ہے، ہماری دشمنی ان یہودیوں سے ہے جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ اگر قرآن اٹھا کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ترین پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ وقربناہ نجیہ، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ پیغمبر جن کو کوہ طور پہ بلا کے میں ان سے سرگوشیاں کیا کرتا تھا، اس پیغمبر کو اللہ نے اس قوم کی طرف بھیجا۔ کس قدر ٹینشن دی یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو، کیسے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، درجنوں مرتبہ لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا۔ 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، 1 ارب سے زیادہ، اور یہودی کتنا ہے؟ 1 کروڑ بھی میرا خیال ہے نہیں ہوگا، لیکن یہ 1 ارب سے زیادہ مسلمان کس کے کنٹرول میں ہیں؟ اور میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، اس وقت اسرائیل امریکہ کا غلام نہیں ہے، خوب سمجھ لیں۔ امریکہ کی گچی کس نے پکڑی ہوئی ہے؟ اسرائیل نے پکڑی ہوئی ہے۔ اسرائیل انڈیا کا غلام نہیں ہے، انڈیا کی گچی پکڑی ہوئی ہے کس نے؟ گچی سمجھتے ہو؟ گچی یہاں سے پکڑ کے نا بندہ ہل نہ سکے۔ چھوٹا سا ملک ہے، سازشوں کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے نہیں، مکاریوں اور سازشوں کی وجہ سے دنیا کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے۔ سازشیں کسے کہتے ہیں؟ ایک بہت طاقتور آدمی جو آپ کے کنٹرول میں نہ ہو، آپ اس کے کسی راز پہ مطلع ہو جائیں، اسے کسی برائی میں ڈالیں اور خفیہ ویڈیو بنا لیں آپ، اور بولیں جو میں کہہ رہا ہوں کرتا رہے ورنہ یہ ویڈیو لیک کر دوں گا۔ وہ انتہائی پاورفل آدمی بھی کنٹرول میں کس کے آ جائے گا؟ ایک انتہائی کمزور آدمی کے کنٹرول میں۔ یہودیوں پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے قرآن کیا کہتا ہے؟ غربت علیہم الذلہ، انہوں نے پیغمبروں کو قتل کیا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو صرف ستایا نہیں، بے انتہا ستایا۔ اتنے سارے معجزے دیکھنے کے باوجود انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسیٰ ابن مریم کو معاذ اللہ ولد الزنا کہا، حالانکہ ان کی اپنی کتابوں میں آج تک عیسیٰ ابن مریم کی گواہی، ان کے نبوت کے علامات موجود ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہودی مدینہ میں کیوں آباد ہوئے؟ آخری نبی کے انتظار کے لیے، ورنہ مدینہ اور یہودیوں کا آپس میں کوئی لنک بنتا نہیں ہے۔ یہ لوگ جایا کرتے تھے سفر کر کے، راستے میں مدینہ کا نخلستان تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں آئیں گے، نبوت کا اعلان کریں گے، وہ اس تمام علامات اس علاقے میں پائی جاتی ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد جیسے انہوں نے اپنی کتابوں میں عیسیٰ ابن مریم کا تذکرہ ہونے کے باوجود ان کا انکار کیا حسد اور جیلیسی کی وجہ سے، اسی طرح انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا۔ قرآن کہتا ہے اس کی بیس بھی کیا تھی؟ حسد اور جیلیسی۔ دیکھو اللہ کا قاعدہ ہے کہ دنیا میں جو حد سے زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے نا اپنی اوقات سے زیادہ، حق علی اللہ اللہ یرتفع شیء الا وضعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ جو چیز بھی حد سے آگے نکلے گی اللہ اس کو زمین پہ گرا دے گا۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا، بہت سے لوگ ہر وقت میں کرتے کرتے تکبر سے دماغ خراب ہونے لگتا ہے۔ اللہ کی قدرت حرکت میں آتی اور اللہ ایک ہی دفعہ میں نیچے پٹکتے ہیں اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، جو مجھ سے اس چادر میں شرکت کی اور الجھنے کی کوشش کرے گا میں اس کو رسوا کر دوں گا۔ یہی 100% یہ معاملہ اللہ نے یہودیوں کے ساتھ کیا ہے۔ یہ لاڈلی قوم تھی، اللہ نے ان میں بہت سارے پیغمبر بھیجے، موسیٰ کلیم اللہ بھیجے جنہوں نے ان کو فرعون کے تسلط سے آزاد کرایا۔ اتنے سارے معجزے دیکھنے کے بعد جب ان کو حکم ہوا اللہ کی راہ میں جہاد کرو تو انہوں نے کیا کہا؟ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑ، ہم یہیں بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں۔
अल्लाह ने क्या किया है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो दो बेटे थे ना, एक इस्माइल और एक इसहाक, तो अल्लाह ने नबूवत कहाँ शिफ्ट कर दी, इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद, कि अब जो आखिरी पैगंबर आएगा वो इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में नहीं होगा, वो बनी इसराइल में से नहीं होगा। इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में नहीं होगा, वो किसकी औलाद में होगा, इस्माइल अलैहिस्सलाम। इनके अंदर दो बीमारियां, एक हसद कि फला को नेमत क्यों मिल रही है, और एक दुनिया से मोहब्बत। कुरान कहता है यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सना, इनमें से हर शख्स चाहता है कि कम से कम उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 1000 साल। और मुसलमान दुनिया से मोहब्बत नहीं करता। तो आप बताओ, दो ऐसी कौमों का मुकाबला हो कि एक जिंदा रहने के लिए लड़ रही हो और एक मौत के लिए लड़ रही हो, तो फतह किसको मिलेगी, जो मौत के लिए लड़ता है। पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार किया, अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को माँ की गोद में जबान दी कि मैं वलदुज़्ज़िना नहीं हूं। इन्होंने वो मोजज़े अपनी आंखों से देखे, मगर क्यों नहीं माना, इसलिए कि अपनी चौधराहट जा रही थी। जब मजहबी चौधराहट इंसान में आती है ना, वो बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि मजहब में इज्जत बहुत मिलती है। हमने बड़े बड़े उलमा से सुना, तबलीग में आलिम के लिए 1 साल रखा हुआ है, गैर आलिम के लिए नहीं रखा हुआ। मैं जब अपने शेख से बैत हुआ तो मुझे उन्होंने बहुत सारे मामूलात बता दिए कि ये जिक्र इतने लंबे चौड़े। मैं हैरान था कि वो फला बैत होकर गया है, उसको तो कम मामूलात बताए, हम तो मौलाना है। तो हमारे शेख ने कहा कि आलिम के बिगड़ने का अंदेशा आमी आदमी के बिगड़ने से बोलो ज्यादा है। इज्जत भी मिलती है जब इल्म होता है, शोहरत भी मिलती है। इज्जत, शोहरत, दौलत, ये 3 चीजें इंसान की खोपड़ी को क्या करती हैं, बोलो खराब। तभी तज़किया नफ्स जो है ना, तज़किया नफ्स, जिसके पास भी इल्म है, आज यूट्यूब पे बहुत से स्कॉलर्स हैं, इधर उधर से इल्म हासिल कर लिया, किसी बुजुर्ग से बाकायदा ताल्लुक कायम करके अपना तज़किया नहीं करवाया, तो वही इल्म उनका गुमराही का फैलाने का जरिया बन जाता है। कुरान क्या कहता है, इन लोगों में आना पैदा हो गई, हमने इनको इल्म, यहूदियों को इल्म पर भी दुनिया का इल्म भी दिया, दीन का इल्म भी दिया, और दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम के जरिए दुनिया में इनकी खिलाफतें कायम हुई। तो बजाय अल्लाह के शुक्रगुजार बनने के तकब्बुर से खोपड़ी आउट होना, बोलो शुरू। अल्लाह से कोई नहीं लड़ सकता। जब तकब्बुर आएगा आपके अंदर, बजाय इसके कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करो, बहुत बड़े हिस्से पर यहूदियों ने हुकूमत की है। ऐसे ऐसे पैगंबर अल्लाह ने यहूदियों को दिए जो ना ईसाइयों के हिस्से में आए ना मुसलमानों के हिस्से, यानी कसरत के एतबार से इतने ज्यादा। हमें अल्लाह ने सैयदुल अंबिया दिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम पर सबसे ज्यादा एहसान है। लेकिन कसरत को देखा जाए तो जितने कसरत से पैगंबर यहूदियों के पास आए, इतनी कसरत से पैगंबर किसी और कौम के पास नहीं आए। फिर अल्लाह ने दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम के जरिए इनको बड़ी बड़ी हुकूमतें दी, बैतुल मक़दिस इनका मरकज बना। लेकिन अल्लाह का शुक्र गुजार बनने के बजाय तकब्बुर से खोपड़ी आउट होना शुरू हो गई। अल्लाह ने इनसे निजाम हुकूमत लेके किसके हवाले कर दिया, बैतुल मक़दिस का, ईसाइयों के हवाले करके। ईसाई बहुत थोड़े थे, लेकिन अल्लाह ने उन थोड़ों को इन ताकतवरों से लड़वाया और अल्लाह ने इनको मगलूब किया। इनके हाथ से बैतुल मक़दिस निकला और उसके बाद से अब तक इनके हाथ में बैतुल मक़दिस नहीं आया। मुसलमानों के पास आ गया, इनको नहीं दिया अल्लाह ने। 18वीं सदी के शुरू में, 17वीं सदी के एंड में, सन 1900 की बात कर रहा हूं मैं, 1901 1902 की, इससे भी कुछ टाइम पहले ये दुनिया में बिखरे हुए थे। दुनिया में किसी को इनसे दुश्मनी नहीं, लेकिन दुनिया में जहां भी गए कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने साजिशें तर्क न की हो। हिटलर जो था ना दूसरी जंग अजीम में, मैं तो जर्मनी गया हूं ना, मैंने वो कब्रिस्तान भी दिखाया था यहूदियों का। हिटलर ने यहूदियों पे बहुत ज्यादा जुल्म किया, जो बिल्कुल गलत किया। हम उस जुल्म को कभी भी हौसला अफजाई नहीं करते, देगों में उठा उठा के जिंदा डाल दिया करता था। हम इस अमल में हिटलर की बिल्कुल भी हौसला अफजाई नहीं करते, इस अमल को अप्रिशिएट नहीं करते। लेकिन उसने एक तारीखी अल्फाज कहे थे, उसे पता था दुनिया मुझे बुरा कहेगी बाद में, कि लाखों यहूदी मार दिए मैंने। उसने कहा मैं चाहता था सबको कत्ल कर देता, एक भी जिंदा ना छोड़ता, लेकिन कुछ मैं जिंदा छोड़ के जा रहा हूं, ताकि दुनिया जब मुझे याद करेगी ना कि यहूदी जालिम था, तो दुनिया को पता चलेगा कि मैंने इनको कत्ल क्यों किया। कुछ छोड़ के जा रहा हूं, ये चैन से नहीं बैठेंगे, देखना करते क्या है ये। आज हिटलर जिंदा होता, हिटलर अगर आज जिंदा होता, दुनिया कहती कि तू बंदा ठीक नहीं था लेकिन बात ठीक करके गया है। जैसे मुशर्रफ बंदा ठीक नहीं था लेकिन बात, उसने कहा ना दुनिया किसकी जबान मानती है, डंडे की, बात ठीक करके गया है। और मैं आप लोगों को भी कहता हूं, आपका घर भी एक छोटी सी रियासत है, घर में आपका रोब होगा तो सही चलेगा घर, रोब नहीं है तो भी दिमाग से निकाल दो कि मैं मोहब्बत और अमन शांति के साथ घर सही चलेगा। अमन शांति से ही चलता है घर,
रोब का होना भी क्या है, इसके बगैर नहीं होता गुजारा। समझते हो कि नहीं? तो अल्लाह ने आदमी को आदमी इसलिए बनाया है कि उसका थोड़ा रोब रहे घर के अंदर। रोब खत्म तो घर से बड़ी मुसीबत फिर कोई नहीं है। दुनिया भी इसी उसूल पे चलती है। तो 17वीं सदी के आखिर में इनको ख्याल हुआ कि हम इतने सुकून से बैठे हुए हैं, अब तक दुनिया में कुछ उल्टा पुल्टा हुआ क्यों नहीं है। इनको ख्याल हुआ यहूदियों को। कुरान ने इनके बारे में क्या कहा, ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला, हमने इन पर जिल्लत को दे मारा है। आपको पता है कि यहूद का लफ्ज इतनी बड़ी गाली दुनिया के लिए बन गया था। ईरान में बहुत ज्यादा यहूदी हैं, पता है आपको? इसराइल के बाद सबसे ज्यादा यहूदी ईरान में है, लेकिन उन्होंने अपना नाम ईरान में यहूद नहीं रजिस्टर्ड करवाया, कलीमी रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, मूसा कलीमुल्लाह की निस्बत। क्यों? उनको पता है कि यहूद का लफ्ज दुनिया में क्या बन चुका है, गाली। शर्म आएगी किसी को बताते हुए कि मैं यहूदी हूं, इसलिए ईरान में उन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड किस नाम से करवाया है, कलीमी कहते हैं उनको। मैं मानता हूं सारे यहूदी ऐसे नहीं होते, मैंने पहले वजाहत कर दी, हमें यहूदियों से दुश्मनी नहीं है, क्योंकि कुरान जहां यहूदियों की बुराई बयान करता है वहां कुरान ये भी कहता है लैसू सवाअन, सारे एक जैसे नहीं है। कुरान एतदाल से बात करता है, सारे एक जैसे नहीं है। लेकिन जितना शर और फसाद इस कौम में है, कुरान कहता है कि इतना दुनिया में किसी और कौम में नहीं है। लतजिदन्ना शद्दन्नासी अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद, अल्लाह कहते हैं तो मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन दुनिया की जितनी कौमें हैं उनमें सबसे बड़ा दुश्मन किसको पाओगे? यहूद को पाओगे। उसके बाद मुशरिकीन को पाओगे, और इस्लाम के सबसे ज्यादा करीब तुम किसको पाओगे? नसारा को, ईसाइयों को पाओगे। तो इनको बहुत अरसे से, सदियों से कुछ दुनिया में हुआ नहीं था, तो इनको बैठे बैठे परेशानी होना शुरू हो गई।